हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय पीकेवाई। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन का लास्ट चैप्टर। तो अगर आप इस चैप्टर की नोट्स या पीडीएफ लेना चाहते हैं तो कमेंट या डिस्क्रिप्शन में से लिंक है, ले सकते हैं। बिल्कुल फ्री पीडीएफ है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। चैप्टर का नाम है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट। ट्रेनिंग मीन्स हम जानते हैं क्या होता है, वही उसी को हम पढ़ेंगे स्पोर्ट्स में कैसे काम लाते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ प्रेपरेशन फॉर सम टास्क। जो सम टास्क होते हैं उनको प्रेपरेशन मतलब तैयारी करने के लिए स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज जो स्पेशल प्रोसेस ऑफ प्रेपरेशन फॉर स्पोर्ट्स पर्सन। जो पर्सन होते हैं बेस्ड ऑन scientific principles and aim at improving and maintaining higher performance capacity in different sports activities. It is a particular type of training designed to improve fitness and ability to perform a given sports। यानी कि एक ऐसी चीज जो हम पहले से प्रिपरेशन करते हैं किसी सम टास्क को पूरा करने के लिए, उसे हम ट्रेनिंग कहते हैं। ट्रेनिंग हमारी फिटनेस को बढ़ाती है, हमारी गेम में वो एक्टिविटी को बढ़ाती है। एंड टैलेंट आइडेंटिफिकेशन देखते हैं हम। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन इज टू एंश्योर दैट द अप्रोप्रिएट प्लेयर्स आर बीइंग सेलेक्टेड। Selections must be done fairly and equitably. This requires a better understanding of players' identification and the adoption of suitable selection policy. Selection needs to ensure that they are assessing the correct qualities and attributes and to ensure consistency in selections. Talent identification is the process of recognizing current players that have the potential to excel. It involves an attempt to predict a future capacity to performance of an individual. Talent identification is based around the number of arms, these being physical attributes and physiological skills, technical skills and psychological skills and cognitive जो हमारी स्किल्स होती हैं एंड सोशल, उनके स्किल्स पर हमारे लिए सेलेक्ट किया जाता है किसी गेम में या स्पोर्ट्स में। इट इज important that the talent identification program has a clear focus that players the emphasis on identifying players with long-term potential rather than current टूर्नामेंट बीइंग एबिलिटी। यानी कि किसी टूर्नामेंट में जो स्पोर्ट्समैन अच्छा खेलेगा उसी के लिए सेलेक्ट किया जाता है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल क्या होती है? देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेडिक्शन इन स्पोर्ट्स विच इंक्लूड 3 डिफरेंट ट्रेनिंग साइकिल्स। Prediction is an organized approach of training which involves progressive cycling of various aspects of a training program during a specific period of time. It can be defined as the principal variations of a training program over time so that the competitor gets closer his or her optimum adaptive जो potential just before an important event। किसी इम्पोर्टेंट से पहले जब हम प्रक्रिया में मतलब गेम से पहले करते हैं वो हमारे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल की भी आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक्रो साइकिल। जो मैक्रो साइकिल होती है वो क्या होती है? ए मैक्रो साइकिल रेफर्स टू द एंटायर सीजन और ट्रेनिंग पीरियड एज होल फॉर एथलीट्स। For an athlete, the competitive season happens once a year. Then the macro cycle will be of a full year. If there will be 2 competitions within a year,
within a year, then we say they are two macrocycles. Macrocycles are then further divided into mesocycles. Mesocycles क्या है? Mesocycle, the mesocycle represent a specific block of training that typically made up of 3 to 4 macrocycles, 3 to 4 weeks that designed to accomplish a particular goal. A mesocycle from a number of continuous weak macrocycles होती हैं. Where the training program focus towards improving the same physical adaptations. For example, maximal strength, static strength, and maximal speed of foundation threshold power (FTP), जिसे क्या कहते हैं? फंक्शन थ्रेशोल्ड पावर. नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारी माइक्रो सर्कल है उसके बारे में. मैक्रो सर्कल क्या है? विद इन मेजो सर्कल वी हैव माइक्रो सर्कल. दीज आर द discrete unit block of time within the mesocycle and namely a week long throw. It can vary from few days. जो हमारे few days के लिए की जाती है उसे माइक्रोसाइकिल कहते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ क्या है? इट इज द कैपेसिटी टू ऑफ द होल बॉडी और ऑफ एंड इट्स पाथ टू एक्सटेंड फोर्स. Muscular strength is a force that a muscles or group of muscles can exist against restrictions in a maximum effort. It is defined as the amount of force muscles or group of muscles can exert. टाइप ऑफ स्ट्रेंथ क्या है? एक स्टैटिक स्ट्रेंथ, डायनामिक स्ट्रेंथ. दो प्रकार की स्ट्रेंथ होती हैं. तो इसके सबसे पहले पढ़ते हैं हम स्टैटिक स्ट्रेंथ क्या है. स्टैटिक स्ट्रेंथ इज आल्सो नोन एज, जो हमारी आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ होती है. इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू कंटैक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस. स्टैटिक स्ट्रेंथ कैन बी omnized using a dynamometers. This kind of power cannot be seen in directly. Static strength is rarely used in sports, but it is generally used in phases during weight-velocity. Dynamic strength क्या होती है? Dynamic strength is also known as isotonic strength because it related to the movement. We require dynamic strength to complete fulfill जो हमारी पुल अप्स या पुल अप्स या पुशअप्स होती हैं. मसल्स बिगन refuse to weak after a certain time period due to the tendency of dynamic strong to decline during such workout. Example है push-ups and pull-ups. Types of DS क्या है? डायनामिक स्ट्रेंथ. Maximum strength, it is the ability to work against maximum resistance. Example है weighting, weightlifting and shot put etc. एक्सप्लोसिव, जो हमारी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ होती है क्या है? इट इज द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस विथ हायर स्पीड. इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड एबिलिटी. स्ट्रेंथ एंडोरेंस क्या होती है? It is the combination of strength and endurance abilities, commonly for long distance race, swimming and cycling में काम आती है. Method of improving strength, हम कैसे improve कर सकते हैं strength के लिए? तो isometric exercise क्या होती हैं? These exercise are those exercise which are not visible. In fact, there are no direct movement, hence they can't observe. जो हमें एक्सरसाइज हमें नहीं दिखती उन्हें हम जो इस कैटेगरी में रखते हैं. इन दीज एक्सरसाइज वर्क इज परफॉर्म्ड बट नॉट सीन डायरेक्टली. इन दीज एक्सरसाइज अ ग्रुप ऑफ मसल्स कैरी आउट टेंशन अगेंस्ट अदर ग्रुप्स ऑफ मसल्स. फॉर एग्जाम्पल है पुशिंग अप अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग वॉल. नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोटोनिक एक्सरसाइज. आइसोटोनिक एक्सरसाइज क्या है? व्हाइल डूइंग एक्सरसाइज टेंशन certain in working muscles and there is a changing in strength in length. Muscles gets
shorted, shorted and length isotonic exercise tune up the muscles becomes flexible. Activities like jumping, running, weighting lifting are some example of isotonic exercise. जो आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज होती है उनके बारे में देखते हैं। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज, इन दीज एक्सरसाइज देयर इज अ मूवमेंट विद कंटिन्यू टेंशन इन बोथ फ्लो, जो हमारे फ्लेक्सर एंड एक्सटेंशन मसल्स होती हैं। इन दिस मसल्स कंटेक्ट थ्रू द रेंज ऑफ मूवमेंट एट अ कॉन्टैक्ट स्पीड। बोथ फ्लोरा, जो हमारी फ्लेक्सर और एक्सटेंसर मसल्स कॉन्टैक्ट simultaneously. As a result, both develop. Thus, it takes less time to build muscles. Activate जो activities such as rowing and swimming होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोरेंस क्या है। एंडोरेंस इज द एबिलिटी टू सस्टेन अ कंटिन्यू ऑफ एक्टिविटीज। नेक्स्ट हम इन अदर वर्ड्स इट इज एबिलिटी टू रेजिस्ट फैटिग फॉर लॉन्ग पीरियड। एंडोरेंस क्या है, लॉन्ग पीरियड के लिए फैटिग होती है। एंडोरेंस इज रिक्वायर्ड फॉर ऑलमोस्ट ऑल मेजर स्पोर्ट्स। It is one of the important components of middle and long distance race, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल एंड हैंडबॉल। इन सब में क्या होती है, एंडोरेंस जरूरी होती है। टाइप ऑफ एंडोरेंस क्या क्या है, एक होती है स्पीड एंडोरेंस। दिस इज अ टाइप ऑफ एंडोरेंस इन विच द एक्टिविटीज इज डन विद हाई स्पीड and intensity. This endurance is for a short and duration for 30 to 60 seconds with 80% to 90% of top speed ability. This type of endurance is required a medium distance race, swimming, basketball and tennis में ये चाहिए थी स्पीड एंडोरेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेंथ एंडोरेंस। स्ट्रेंथ एंडोरेंस क्या है, दिस इज टाइप ऑफ एक्टिविटी इज डन पावरफुली एंड फोर्सफुली फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन। दिस ड्यूरेशन फॉर 2 to 3 मिनट की हो सकती है। स्ट्रेंथ एंडोरेंस strength endurance is generally performed in absence of oxygen. It required breathing, boxing and judo etc. नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म एंडोरेंस की होती है। जो लॉन्ग टर्म एंडोरेंस होती है, दिस टाइप ऑफ एंडोरेंस इज रिक्वायर्ड व्हेन द एक्टिविटीज इज डन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी फॉर स्पीड इज स्लो। It delay fatigue. It required long distance running, cycling and across country, motoring and football etc. तो नेक्स्ट हमारा चैप्टर वो खत्म। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड इज बेस्ट सुटेबल फॉर डेवलपिंग स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए कौन सा मेथड सुटेबल है, तो हम जानते हैं जो आइसोमेट्रिक मेथड है वो एक सुटेबल मेथड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू डेवलप मसल एंडोरेंस विच मेथड विल बी मोस्ट सुटेबल। तो जो हमारी सर्किट ट्रेनिंग होती है वो इसके लिए बेस्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन है जो हमारी एरोबिक कैपेसिटी कैन बी इंक्रीज बाय मेथड ऑफ सर्किट ट्रेनिंग मेथड इज बेस्ट फॉर दिस एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेनिंग। ट्रेनिंग से आप क्या समझती हैं, तो ट्रेनिंग मीन द जो प्रिपेयर समवन फॉर सम, जो असाइनमेंट। ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन फॉर सम टास्क को करने के लिए जो हम तैयारी करते हैं उसी को हम ट्रेनिंग कहते हैं। राइट एनी टू डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग। तो हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू जो हमारे मैथ्यू है वो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज द बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन फॉर अ स्पोर्ट्समैन। अकॉर्डिंग टू मार्थन क्या है, इट इज अ planned and controlled process to achieve goal in which the change of motor performance and behavior of made through major contact method and organization।
नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज द फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, टेक्निकल, फिजियोलॉजिकल एंड मोरल प्रिपरेशन फॉर ऑफ एन एथलीट प्लेयर बाय मीन्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिस्ट टू इम्पैक्ट फॉर सर्किट ट्रेनिंग की क्या इम्पैक्ट होती है। इट एनहेंस कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, इट एनहेंस मस्कुलर एंडोरेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग क्या है। तो सर्किट ट्रेनिंग इज अ फॉर्म ऑफ बॉडी जो कंडीशनिंग ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यूजिंग हायर इंटेंसिटी एरोबिक। इट टारगेट्स स्ट्रेंथ बुल्ड एंड मसल एंडोरेंस। Next question, what is endurance? The endurance is the ability to do sports movement with the desired quality and speed under conditions fatigue। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम। व्हाट इज द टर्म फास्ट लेग मैन एंड हु डेवलप्ड दिस ट्रेनिंग मेथड। क्या आंसर है। तो हम बात करेंगे फाट जो हमारे फाट लैग इज अ सैडविच टर्न विच मीन्स स्पीड प्ले एंड हैज बीन यूज बाय डिस्टिंक्ट जो रनर फॉर ईयर्स। जो फाटलेस इज द फॉर्म ऑफ रोड रनिंग और क्रॉस कंट्री रनिंग इन विच द रनर यूजुअली चेंज द पेस एंड सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द रन। This method was introduced by O. Astrold and Gösta Helena. It is a god of aerobic and anaerobic fitness. That is why they make an athlete is a better sprinter and they are better long distance runner। Next हम बात करते हैं व्हाट इज स्पीड। स्पीड क्या है। इट इज द एबिलिटी टू कवर डिस्टेंस इन मिनिमम पॉसिबल टाइम और द एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट इन विच शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट आर द पेस रेस। जो पेस रेसेस होती है वो क्या है। तो पेस रेसेस मीन्स रनिंग इन होल डिस्टेंस और ऑफ अ रेस एट अ कांस्टेंट स्पीड। इन पेस रेस एन एथलीट रन रेस विथ यूनिफॉर्म स्पीड जनरली 1800 मीटर पर आवर। वेरी यंग चिल्ड्रन कैन मेंटेन देयर मैक्सिमम स्पीड फॉर जो 15 से 20 मीटर। वेर एवर वेल ट्रेन्ड एथलीट्स कैन मेंटेन मैक्सिमम स्पीड 40 to 14 मीटर। रिपीटिशन कैन फिक्स अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड ऑफ द एथलीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी इज द एबिलिटी टू परफॉर्म जॉइंट एक्शन थ्रू द रेंज ऑफ मूवमेंट। इट इज नीड टू परफॉर्म एवरी body activities with the activity and flexible tend to deteriorate with age। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं व्हाट आर द मेथड ऑफ डेवलपिंग फ्लेक्सिबिलिटी। क्या मेथड है फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। मेथड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी डेवलपमेंट फ्लेक्सिबिलिटी आर तो बैलिस्टिक मेथड है, स्लो स्ट्रेंथिंग मेथड एंड स्लो स्ट्रेचिंग एंड होल्डिंग मेथड एंड पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ मेथड। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन की। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग मीन्स टू प्रिपेयर समवन फॉर सम असाइनमेंट। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन फॉर सम टास्क। मैनी countries have recognized the importance of effective training program, a wide range of activities not only for success in major international competitions but also for the development of healthy participants। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं व्हाट इज द स्ट्रेंथ एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू मसल टू एक्सर्ट फोर्स सैम मसल्स कॉन्टैक्ट or it is the ability to overcome resistance। Strength is an essential component of physical fitness। Type of strength maximum strength, explosive strength and strength endurance and static strength। तो हमारा चैप्टर हुआ समाप्त एंड थैंक यू।